future of Pakistan in terms of affiliate marketing? Do you see the trend of people coming in, or do you see like any other upcoming trends in that? देखिए इसमें क्या है, पाकिस्तानी यूथ जो है ना, मैं अक्सर कहता हूँ बड़ा स्मार्ट यूथ है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको फिगर दिया $400 to $500 million, ये कोई छोटा फिगर तो नहीं है ना। दैट्स अ वेरी बिग नंबर, राइट? Assalamu alaikum everyone, this is Ikra Asif. Welcome back to another episode of Digital Pakistan, and with us we have Dr. Batada. So welcome on the show, Dr. Batada. How are you doing today? I'm doing great, alhamdulillah. Great. We've been receiving such nice feedback regarding our series and how we're able to create impact on people's lives. So what is your take on that? Well, I'm also very glad. The other day I got a chance to meet with someone and they said that after seeing the first episode, and they are basically trying to explore the opportunity of digital nomad for their children as well. Right. So this is fantastic, as I said that in the earlier episodes as well. Digital is basically, the opportunities is full of shine. Right. So this is the time to take the full advantage as well. Right. And I think, and it's super brilliant that how we're able to create impact on people's life, right? And people's life choices. I think that's the key motive of our series, right? Absolutely. We just need to basically explore, and we just need to basically share the good opportunities for all the youth as well, because as I said that in the earlier episode, we are targeting our youth, right? Right. So this sounds good. Yeah. Right. So in our last episode, we discussed on digital assets, what they are, what's the importance of it, and what's the eligibility criteria for that, and how to create a digital asset. And I think people are already working on that. So today, I think we should be talking about like the budget, right? We'll be talking about Digital Pakistan, digital opportunities. So what is your take on this year's Pakistan's budget? Well, that's very interesting. So, well, I really would like to basically share a few thought process to all the stakeholders as well, and that's very much important to know. Like, for example, if I'll talk about the Higher Education Commission or a Higher Education Institute, so we do have X number of Higher Education Institute in Pakistan as well. So, altogether, if I'll talk about that, we got around $400 to $500 million freelancer money in the last financial year. So the other day I was getting the chance to speak in one of the conferences as well. I was just saying that कि अगर ये number जो है $400 to $500 million, अगर हम इसको double करना चाह रहे हैं, so how we gonna do that? So इसके दो options हैं. एक options ये है कि we need to basically target the freelancers. ठीक है, और इस फ्रीलांसर्स के साथ हमें क्या करना है, इसके एक पूल को थोड़ा सा बड़ा करना है। एक सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे पाकिस्तान में ये है कि ये फ्रीलांसर का डेटाबेस हमारे पास नहीं है। दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। यानी डिफरेंट फिगर्स आपके पास डिफरेंट फोरम्स के थ्रू आ रही होती हैं। सो वी डू नॉट हैव दी, वो कहते हैं ना, ऑथेंटिकेट डेटाबेस जो है वो हमारे पास, दैट्स बेसिकली द मिसिंग कंपोनेंट। सो वी नीड टू बेसिकली एज अ नेशन वी नीड टू वर्क ऑन दैट, सो वी शुड बेसिकली हैव दैट डेटाबेस विद अस as well. And I think that data would be super lucrative. Absolutely. How are we going to use that data? For example, let me give you the example. As I said that कि अभी हम टारगेट कर रहे हैं $400 to $500 million, right? और हम कहते हैं कि यार in the next 1 year is this possible to go with $1 billion? Right. तो believe me that is possible. How it's going to be possible? I really would like to give and suggest few things as well. नंबर 1 है कि जो फ्रीलांसर्स ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं, कुछ $500 हैं, कुछ $1,000 पर मंथ कर रहे हैं, कुछ इससे ज़्यादा कर रहे हैं, सो वी मस्ट हैव द डेटाबेस। सो वी नीड टू बेसिकली क्रिएट द डेटाबेस, एंड मेरा ख्याल है मिनिस्ट्री को इसके ऊपर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। इसको एक ऑथेंटिकेट डेटाबेस हमारे पास होना चाहिए। अभी राइट नाउ प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं, बहुत सारे लोग अपनी जो फंडिंग होती है वो कहीं अपने सिबलिंग्स के पास बाहर ही भेज रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं आ रही है। सो बहुत सारा टैक्स की वजह से टैक्स है, या बहुत सारा ग्रे एरिया है। राइट। सो अगर हम उनको थोड़ा सा इंसेंटिव देंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक स्कीम मैंने निकाली है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो $1,000 प्लस कमा रहे हैं। ठीक है, और what I'm gonna do, I'm gonna basically provide the trainings as well. I'm gonna basically provide the other things as well. So straight away क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज के $1,000 की अगर उनको ट्रेनिंग मिल रही है backed by the government, तो स्ट्रेट अवे दिस इज काइंड ऑफ स्कॉलरशिप। तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि वो $1,000 जो कमा रहा है, मैं चाहता हूँ कि $1,000 नहीं, वो अपने आप को $2,000 पे लेकर आ जाए। राइट, ठीक है। सो और वो टैक्स
मे बी रजिस्टर हो जाएगा, जिससे डेटाबेस आ जाएगा आपके पास डेटाबेस आ जाएगा. एट द एंड ऑफ द डे डेटाबेस होगा तो यू कैन बेसिकली टेक लॉट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द डेटा एज वेल. ठीक है, अभी तक हम प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है. तो हम इवेंचुअली हम प्रोडक्ट बेस की तरफ भी आ सकते हैं. तो द फर्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू से कि यार आइडेंटिफाई करें, क्रिएट डेटाबेस फॉर द फ्रीलांसर्स एज वेल. ठीक है, एंड दैट शुड बी ऑथेंटिकेट एज वेल. ऑथेंटिकेटेड डेटाबेस आई एम लुकिंग फॉर दैट. नंबर 1, टारगेट करें उनको. टारगेट कोई सब्सिडी दे, सब्सिडी इन द फॉर्म ऑफ पैसे नहीं, इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग दे. ठीक है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें वो क्या कर रहे हैं, वो इफ आई टॉक अबाउट द नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम, तो वो क्या कर रही होती है, अक्रॉस द बोर्ड सबको ट्रेनिंग दे रही है. सही है, दिस इज फाइन. स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, कोई स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, बट वो सबके साथ दे रही है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक करें जो ऑलरेडी फ्रीलांसर्स या इस गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं. दैट्स बेसिकली ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 2 ये कि जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास $400-500 मिलियन अगर आ रहे हैं इस फ्रीलांसर के थ्रू, और इमेजिन करें मेरे पास लाख या 1.5 लाख के करीब जो हैं मेरे पास फ्रीलांसर्स होंगे. ठीक है, बिकॉज आई डू नॉट हैव द करेक्ट नंबर विद मी एज वेल. सो द पॉइंट इज कि हमें क्या करना है एज अ नेशन, उस 1.5 लाख को 3 लाख पे पहुँचाना है. ठीक है, इमेजिन करें कि अगर मैंने इसको डबल कर लिया तो स्ट्रेट अवे मेरा क्या हो जाएगा, वो $500 मिलियन जो वो $1,000 मिलियन हो जाएगा. सो इट्स गोना बेसिकली क्रिएट द गुड इम्पैक्ट एज वेल. सो दिस इज समथिंग दैट आई एम गोना सजेस्ट दैट कि यार ये देखें, इस डेटाबेस पे वर्क करने की ज़रूरत है. उस डेटाबेस के ऊपर जो फ्रीलांसर्स हैं उनको हमें incentive देने की ज़रूरत है, so that they're gonna become part of it as well, and they can basically use the services and they can basically add some value as well. So this is very much important. The other thing I really would like to say to the higher education institutes as well. देखिए क्या होता है, पाकिस्तान में X नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स, एंड अगर आप अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो अराउंड 42 to 48 कोर्सेज वो पढ़ाते हैं. तो मेरा सजेशन है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन स्पेसिफिक एरिया, कंप्यूटर साइंस और BBA, और आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल. तो उसके अंदर एक कोर्स आपके पास होना चाहिए दैट शुड बेसिकली कॉल्ड डिजिटल एसेट, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि एट द एंड, और ये उसको फर्स्ट फ्रेशमैन को सिखाना है. ठीक है, अगर आपने फ्रेशमैन को सिखा दिया तो फाइनल ईयर पे जो बच्चा जाएगा तो हो सकता है वो अपनी कंपनी ओपन करके जा रहा होगा. एंड आई डू हैव नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो, बिकॉज आई एज यू नो दैट कि जो हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा प्रोग्राम्स है उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो A लेवल्स के होते हैं, फ्रेशमैन होते हैं. तो वो दे आर डूइंग वंडर्स. ठीक है, सो द पॉइंट आई वुड लाइक टू से कि अगर इमेजिन करें कि ये मैंडेटरी कोर कोर्स अगर ये आ जाता है तो स्ट्रेट अवे बेनिफिट क्या होगा कि उनके जो भी कोर्सेज होंगे, ठीक है, वो स्ट्रेट अवे क्लाइंट के लिए काम कर रहे होंगे, एंड दे आर मेकिंग मनी एज वेल. सो इमेजिन करें कि हमारी क्वालिटी एजुकेशन है उसका भी एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा. ठीक है, प्लस क्या होगा कि आपके पास जो 4 ईयर के बाद जो स्टूडेंट कहता है मुझे जॉब करनी है, तो स्ट्रेट अवे वो कहेगा नहीं मैं जॉब प्रोवाइड कर सकता हूं. सो जस्ट इमेजिन कि दीज आर द थिंग्स, क्रिएटिविटी भी इंक्रीज हो रही होती है ऑफ कोर्स, एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ वो कर रहे होंगे, अर्ली स्टार्टअप्स ये कहते हैं वो वुड बी अ मेजर थिंग. से जो डिजिटल एसेट्स की, जी, तो वो डिजिटल एसेट्स उसका फ्रेशमैन का, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट 18-19 इयर्स का बच्चा या बच्ची, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो उस एज ब्रैकेट में उसके दिमाग में आ जाएगा कि नहीं मुझे कुछ क्रिएट करना है. राइट, आई थिंक वो बहुत इफेक्टिव होगा कि अगर गवर्नमेंट भी जो है ना ये फ्रीलांसर्स को सपोर्ट करे, जैसे यू मेंशन्ड एज वेल. सो दिस ईयर्स बजट, व्हाट डू यू सजेस्ट, लाइक इज इट लाइक इन द फेवर ऑफ फ्रीलांसर्स और or not, or maybe what are the things that they should be doing in order to create and motivate influencers and freelancers for their things. देखिए गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स जो हैं जो कि जैसे मैंने बताया कि नेफटेक है जिसमें वो वोकेशनल ट्रेनिंग्स, तो वो तो उनको कंटिन्यू कर रहे हैं. बट ओवरऑल अगर आप एजुकेशन का देखें तो गवर्नमेंट ने एजुकेशन का बजट तो बहुत कम कर दिया है. अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर से भी कंपेयर करूँगा तो काफ़ी कम कर दिया है. सो ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान, क्योंकि बिकॉज ऑफ दी वॉर सिचुएशन जो भी आई थी आपको पता है, तो उसकी वजह से हमें अपने डिफेंस के बजट को भी इंक्रीज करना पड़ा है, एंड दैट्स आल्सो नेसेसरी. ठीक है, सो द पॉइंट इज कि ओवरऑल देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि प्राइवेट सेक्टर को भी काम करने की ज़रूरत है. ये वो IT सेक्टर या डिजिटल वो एरिया मौजूद है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि हम कलेक्टिवली मिलकर एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर आवर ओन फैमिली, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान. तो स्ट्रेट अवे जैसे मैं बता रहा था कि फ्रीलांसर्स की तादाद को भी डबल करने में कामयाब हो जाते हैं. ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कि हमारा $400-500 मिलियन तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा. और स्ट्रेट अवे क्या होगा, बेनिफिट किसको जा रहा है, ये यूथ को बेनिफिट जा रहा है. ठीक है, तो जो हमने फर्स्ट एपिसोड में बात की थी कि वो डिजिटल नोमैड, ऑफ कोर्स पे जब आप आ जाते हैं इसके अंदर,
ठीक है, तो फिर you should be in a So position these to are take all the subsections you go through. absolutely, Yeah. तो सबको benefit आपको मिलना शुरू हो जाता है. And one of the sections, like, we should be discussing today definitely is affiliate marketing, right? So, क्योंकि affiliate marketing is the trend of 2025, right? So, and of course, that's also a subsection of digital, freelancing. Passive income, yeah. So what do you? So, if you would like, if you'd like to tell us, tell the viewers about like what is affiliate marketing in normal, Roman language. So what would that be? आप किसी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या चीज़ है affiliate marketing, how effective it is, and how important it is for in today's economy. इकरा देखिए, मैं इन द एकेडमिया सिंस लास्ट 2 decades. सो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर जो है ना, वो सबसे ज़्यादा जो मुझे नज़र आए, जो मेरे स्टूडेंट्स नज़र आए, वो लास्ट 5-6 years की अगर मैं बात करूं तो कंटेंट राइटिंग साइड पे नज़र आए. ठीक है, तो आपने भी देखा होगा कि आपकी क्लास में 80%, 70%, 60% लोग जो है वो कंटेंट राइटिंग की तरफ होता है. बच्चे को कुछ आए ना, कंटेंट राइटिंग तो इज़ लाइक अ बेसिक थिंग, एंड उसको फिर लोग उस पर इम्प्रोवाइज करते हैं. एंड आई थिंक दैट्स द ब्रिलियंट थिंग, बिकॉज व्हाटएवर स्किल you have, at least you should be pondering over that. एब्सोल्युटली. तो कंटेंट राइटिंग की जिसकी स्किल सेट्स अगर अच्छी है, तो मैं कहता हूँ यार, द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाई यू आर नॉट गोइंग फॉर द एफिलिएट मार्केटिंग. अब देखिए मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ. मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि इस एफिलिएट मार्केटिंग में आप मार्केट कर रहे होंगे किसी की प्रोडक्ट को या किसी की सर्विसेज को, और अगर आपने लिंक दिया है, उस लिंक के थ्रू अगर परचेज हो जाता है या सर्विसेज लॉक हो जाती है या फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो यू विल बी एबल टू गेट द एडवांटेज एज वेल. राइट. ठीक है, अगर मैं इसकी एक एग्जांपल आपको ले लूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फ़ोन के बारे में बड़ा इंटरेस्ट होता है. ठीक है, नया मॉडल आया उनके बारे में पता होता है. ठीक है, इसी तरह बहुत सारे लोगों को गाड़ियों के बारे में बड़ी नॉलेज होती है. ठीक है, तो अगर आप देखें फ़ोन के बारे में, मैं बात करता हूँ iPhone 16 की, या जो iPhone 17 आने वाला है उसकी मगर मैं बात करता हूँ. ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कि अगर उसके वो ब्लॉग्स वगैरह लिख रहे हैं और साथ साथ वो लिंक दे रहे हैं अपनी साइट के ऊपर, अपने ब्लॉग के ऊपर, अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर. जो YouTube में जो व्लॉगिंग होती है, that's a digital asset that we spoke on in our last episode. So तो उसके ऊपर अगर हम क्लिक करके कोई परचेज करता है, तो स्ट्रेट अवे इसको क्या बेनिफिट मिलेगा कि यू विल बी एबल टू गेट द कमीशन. और कमीशन जो होता है समटाइम्स अप टू 25 to 40% तक इसका कमीशन मिलता है आपको. सो दैट्स अ ह्यूज मनी एज वेल. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट मुझे लगता है कि एफिलिएट मार्केटिंग जो है, दैट्स इज प्रीटी काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ थिंग. और अगर कोई कंटेंट राइटर है और वो समझता है कि नहीं, मेरे पास डिजिटल चैनल्स पे भी अच्छी फॉलोइंग है, अच्छे फॉलोअर्स मेरे पास हैं, सो सर्टेनली दे कैन बेसिकली ऑप्ट दैट पर्टिकुलर आउट. राइट. सो ये अभी एफिलिएट मार्केटिंग जो है, ये एक बिजनेस मॉडल एक्चुअल बन चुका है इन पाकिस्तान, या अभी भी ग्रे एरिया है, देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट? मैं जानता हूँ, और इनफैक्ट आप भी थोड़ा सर्च करोगे, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं. ठीक है, वेस्ट में तो आई हैव सीन, बट व्हाट अबाउट पाकिस्तान? पाकिस्तान में भी मैंने देखा है कि बहुत सारे जो हैं, कुछ अगर फॉर एग्जांपल कोई फैशन ब्लॉगर्स हैं, सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर टारगेटिंग कि यार मैं फैशन की एसेसरीज को सेल करूं. कुछ टेक के लोग हैं, तो पता चला वो टेक सर्विसेज है या टेक. कुछ लोगों को मैंने देखा है जो कोर्सेज को कर रहे होते हैं मार्केट. सो देयर आर Instagram, तो देयर आर एक्स नंबर ऑफ एरियाज वेयर यू गाइस कैन बेसिकली यूज दैट पर्टिकुलर नॉलेज एज वेल. और अगर आपके अच्छे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, एक्टिव हैं, and proper आपके influencing followers हैं, so I think that's the thing. So certainly that is possible. So how do we start affiliate marketing in like basic steps in 2025? देखिए, स्टार्ट करने के लिए मैं कुछ साइट्स के बारे में बता देता हूँ ऑडियंस के लिए, सो दैट्स गोना बी यूजफुल. कि अमेज़ॉन का जो है एफिलिएट मार्केटिंग वाला, ठीक है, अगर आप गूगल करेंगे यू बी एबल टू फाइंड आउट द लिंक. affiliate.amazon.com है इसका लिंक. तो आप वहाँ जाके आप अमेज़ॉन का बन सकते हैं. तो उसमें क्या होगा कि अमेज़ॉन पे जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आपका जिस प्रोडक्ट्स पे भी इंटरेस्ट है, यू कैन बेसिकली स्टार्ट दैट एज वेल. द अदर ऑप्शन इज़ अवेलेबल, जो मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूज़ किया, दैट्स बेसिकली कॉल्ड clickbank.com. ठीक है, एंड दे आर इन द इंडस्ट्री सिंस क्वाइट लॉन्ग. और इन्होंने तो अपने पास बड़ी सक्सेस स्टोरीज शोकेस की हैं कि इतने एक्स नंबर ऑफ यूज़र्स हमारे पास या एफिलिएट मार्केटर्स हैं जिन्होंने ओवर $1 million जो है इन द लास्ट 1 year बनाया है.
सो इमेजिन करें कि दिस इज समथिंग, दीज आर द टू गुड साइड्स. द पॉइंट इज कि स्ट्रेट अवे आप जाके अपना वहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं. इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है. और इसमें क्या करना है आपको, आपको अपने बैंक अकाउंट को भी टाइड अप कर देना है इसके साथ. ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. अगर आपका कोई भी लोकल बैंक में आपका बैंक अकाउंट है तो यू कैन टाइड अप दैट. तो इसका क्या बेनिफिट होगा कि जो भी आपके पास इनकम आ रही है एट द एंड ऑफ द डे, यू शुड बी इन अ पोजीशन टू ट्रांसफर दिस टू योर बैंक अकाउंट एज वेल. करेक्ट. एंड इसके अलावा इज देयर एनी फर्दर कुछ प्रॉब्लम या कुछ इस तरीके की चीज़ जो न्यू बिगनर्स फेस करते हैं while क्रिएटिंग एन अकाउंट? इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसमें कोई ऐसा नहीं है मेरा ख्याल है कि सर्टेनली इसको जाके आप स्ट्रेट अवे जाके अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है. आपका क्वेश्चन ज़रूर होगा कि अकाउंट क्रिएट करने के बाद क्या करना है. या ऑफ कोर्स, भाई नेक्स्ट सवाल यही है कि अकाउंट क्रिएट हो गया, सब चीज़ हो गई, अब काम कैसे करना है? काम करना है. हाँ, देखें, अकाउंट क्रिएट करना ना, इट्स वेरी इजी. जस्ट लाइक आपने अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट किया है, मुझे लगता है ये इतना सिंपल है. ठीक है, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक अकाउंट को आपको टाइड अप करना है. तो बैंक अकाउंट का जो IBN नंबर वगैरह होता है वो आपके पास होना चाहिए. तो वो सब इन्फॉर्मेशन इफ यू हैव दैट, तो यू कैन सर्टेनली शुड बी इन अ पोजीशन टू कनेक्ट दैट एज वेल. तब आपका क्वेश्चन है कि इसको करना कैसे है, क्या करेंगे. तो इसमें मैं अक्सर सजेशन देता हूँ कि यार आप ये ना करें कि वो कर रहा है तो मैं ये कर रहा हूँ. एट द एंड ऑफ द डे आपको देखना है कि आपका स्किल सेट्स किसके ऊपर है. फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि सर मुझे जो है ना फैशन के ऊपर काम करना है. करेक्ट. ठीक है, और मैं फैशन के ऊपर कंटेंट भी लिख सकती हूँ, फैशन के ऊपर पोस्ट भी बना सकती हूँ, ग्राफिक्स भी बना सकती हूँ. तो मेरा सजेशन होगा गो विद फैशन. ठीक है, आप कहते हो नहीं सर हमारा फैशन में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा टेक साइड पे इंटरेस्ट है, तो फिर मेरा सजेशन होगा गो विद टेक साइड. सो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आपका फोकस किस चीज़ के ऊपर है. अगर आपका फोकस टेक साइड पे है, आपका फोकस जो है वो फैशन के ऊपर है, कार्स के ऊपर है, ठीक है, ज्वेलरी के ऊपर है, यानी जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप उसको पिक कर लोगे. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई एम गोना सजेस्ट दैट कि इसको सिर्फ और सिर्फ अकाउंट क्रिएट कर लेना कोई कुछ नहीं होने वाला. आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि नहीं यार ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी मुझे बड़ा आसान है, इनकी ऑलरेडी जो है मार्केट मौजूद है. एंड जैसे कि मैं एप्पल की बात करता हूँ, एप्पल के फ़ोन्स हैं, इसकी ऑलरेडी मार्केट मौजूद है, राइट. तो अगर कोई मेरा ब्लॉग पढ़ के अगर उस लिंक पे क्लिक करके उसको परचेज़ करता है तो मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा. दैट्स कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग, राइट. तो एप्पल मेरा नहीं है ना, मेरे पास स्टोर है. राइट. ठीक है, सो द पॉइंट इज कि सिर्फ और सिर्फ मेरे लिंक के थ्रू परचेज हो रहा है, सो आई एम गेटिंग पेड फॉर दैट. सो हाउ वुड यू लाइक आइडेंटिफाई द टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स और प्रोडक्ट्स ऑन दैट? आई थिंक ऑडियंस को बहुत इंटरेस्ट होगा कि ऑफकोर्स अगर किसी को कंटेंट राइटिंग पसंद भी है इन द सेंस ऑफ एक सर्ट जैसे आपने बताया फैशन हो गया या टेक हो गया, सो मगर ऑफकोर्स ये भी होगा कि probably like most of the audience that is like clicking on affiliate marketing would be maybe tech, right? So वो trend और वो उस तरीके से किसी से वो identify कर सकते हैं audience और फिर उसमें से अपना best choose कर सकते हैं. So what is that? उसमें भी अगर आपको again क्या करना है, at the end of the day ये जो आपने R&D करनी है, ठीक है, इसको आपने selection of the प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है ना, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. एब्सोल्युटली, ठीक है. अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक की, फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऐसी प्रोडक्ट को मार्केट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी डिमांड नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है मेरे सारे के सारे एफर्ट्स जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे. तो मुझे यही चाहिए कि टॉप 10 जो है, टॉप 15 जो है या टॉप 20 जो है, मैं उसको वेबसाइट्स हैं जिस पे हम फिगर आउट कर सकते हैं. आप गूगल ट्रेंड्स के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है, गूगल कीवर्ड्स के थ्रू देख सकते हैं. गूगल कीवर्ड्स में बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है जहाँ पे आप लोकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं. आप चाहते हैं कि यूएसए में मुझे देखना है या यूएसए में मुझे कैलिफोर्निया में देखना है कि ये कीवर्ड्स सर्च हो रहे नहीं हो रहे हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट द अमेजॉन, तो अमेजॉन के डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है सबसे ज़्यादा सर्च की जा रही है. ठीक है, सो दीज टूल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू यूज दैट एज वेल. सो वंस यू गोना बेसिकली फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट. आपका क्या इंटरेस्ट है और उससे रिलेवेंट फिर आपने क्या करना है, अपने उन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है. समटाइम्स वो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, समटाइम्स वो सर्विसेज भी हो सकती हैं. मैंने तो देखा है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स SaaS बेस बिजनेसेस होते हैं जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज बिजनेसेस जिसमें सब्सक्रिप्शंस की बात हो रही होती है, वो कर रहे होते हैं. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शॉपिफाई, सबने नाम सुना हुआ होगा मेरा ख्याल है हमारी ऑडियंस में, ठीक है, हाँ, शॉपिफाई. तो शॉपिफाई के भी वो एफिलिएट लिंक ले लेते हैं और उसको वो मार्केट कर रहे होते हैं. तो शॉपिफाई ऐसा मार्केट प्लेस है जिसको सबको पता है इसके बारे में, इस SaaS बिजनेस के बारे में, राइट. सो द पॉइंट इज कि अगर मेरे लिंक के थ्रू इसको परचेज किया गया तो सर्टेनली इसका बेनिफिट उसको मिलेगा.
तो क्या एफिलिएट मार्केटिंग को, ये जो इस इंटायर प्रोसेस को डिजिटल मार्केटिंग के साथ क्या हम टाई अप कर सकते हैं? ओह दैट्स फैंटास्टिक। इकरा, आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें, एट द एंड ऑफ द डे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म खाली आपका, फॉर एग्जांपल देखें अब क्या हो गया, अगर हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें, वंस यू हैव क्रिएटेड द अकाउंट, नंबर 1 स्टेप, then you have identified the product or services, right? Number 3 is कि आप उसको मार्केट कहाँ करेंगे, ठीक है? तो मार्केट करने के लिए आपके पास 2 मेजर ऑप्शंस हैं। एक होगा आपकी वेबसाइट, आप कहते हैं सर आई डू हैव द माई पोर्टफोलियो वेबसाइट, आई डू हैव माई कंपनी वेबसाइट, और वहाँ पे आपने एक ब्लॉग का कंटेंट रखा हुआ है, और वहाँ पे आपने पता चला इससे रिलेवेंट कंटेंट लिखा हुआ है अलॉन्ग, और वो एफिलिएट का लिंक दिया हुआ है। दैट्स ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपके पास? दैट्स सोशल मीडिया चैनल्स, राइट, ठीक है? वो सारे सोशल मीडिया चैनल, अब वो मैं चैनल्स की जो बात कर रहा हूँ उसमें फेसबुक भी आ जाता है, उसमें इंस्टाग्राम भी आ जाता है, इसमें टिकटॉक भी आ जाता है, स्नैपचैट भी आ जाता है, पिंटरेस्ट, यानी हर किस्म के चैनल्स जो हैं उस पर आपकी प्रेजेंस होना मैंडेटरी है, ठीक है? उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना कहीं के भी, तो हम ये देखते हैं कि यार कौन सा चैनल इफेक्टिव है, ठीक है? तो हो सकता है आपने सोचा हो नहीं सर टिकटॉक पे तो मैंने इतना एफर्ट्स नहीं किए, बट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मुझे टिकटॉक लग रहा है। सो क्या आपका कहने का मकसद ये है कि अगर हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमारी प्रेजेंस सारे प्लेटफॉर्म्स पे होनी चाहिए, या हम लोग अगर कोई सेलेक्ट हमारी नीश सेलेक्ट करते हैं उसमें से लेट्स से हमारी जो ऑडियंस है वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ऊपर है, तो क्या हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट इन प्लेटफॉर्म्स पे ही करें, या हम अपने आप को सारे प्लेटफॉर्म्स पे मार्केट करें? देखिए आइडियली तो ये है कि आप यूटिलाइज करें अपने, क्योंकि आप हर जगह आपके कहीं ना कहीं कुछ फॉलोअर्स मौजूद हैं, राइट? ठीक है ना? एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? यू आर लुकिंग फॉर कि नहीं यार मुझे सर कन्वर्जन्स चाहिए, ठीक है? कन्वर्जन्स कहीं से भी आ सकती हैं, यू नेवर नो, एब्सोल्युटली। तो वो यूट्यूब से भी कन्वर्जन्स आ सकती हैं, वो आप कहते हो नहीं मुझे सर इंस्टाग्राम से ज़्यादा मिल रहे हैं या मुझे टिकटॉक से मिल रहे हैं, तो वो फिर आपके पास आपको करना है। सो द पॉइंट इज कि वेबसाइट के ऊपर तो आपका कंटेंट आ गया, ठीक है, जिसको आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज भी करोगे, ठीक है? इसी तरह जो सोशल मीडिया चैनल्स आ गए वहाँ पे डिफरेंट किस्म के पोस्ट्स बनाओगे आप, ठीक है, और उसको आप मार्केट करोगे, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट इज कि आप उसको ऑर्गेनिक मार्केटिंग करो, ठीक है, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। सो फॉर ऑडियंस अगर आप इसको डिफाइन करें ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब ये है, हाँ, ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप अभी तक किसी किस्म के कोई कैंपेन्स नहीं चला रहे, कोई पेमेंट नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ कह रहे हो कि नहीं सर मैं अपनी वेबसाइट को मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया है, ठीक है, मे बी हम कंटेंट बेस के ऊपर हमारे फॉलोअर्स को इंक्रीज करेंगे, एब्सोल्युटली, ठीक है? जिसमें आपने कहा कि सर मैं ईमेल मार्केटिंग भी कर रही हूँ, सर्टेनली दैट इज आल्सो पॉसिबल, ठीक है? आपने कहा सर मेरे पास व्हाट्सएप के एक्स नंबर ऑफ ग्रुप्स में मैं हूँ उस पर, तो आई वांटेड टू बेसिकली यूज दोस चैनल्स एज वेल, ठीक है? तो मैं अक्सर एक बात अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, देखिए अगर आपके पास लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक, व्हाटएवर जो भी आप चैनल्स हैं, उसके ऊपर अगर आप कहते हो मेरे पास 30,000 40,000 फॉलोअर्स हैं, और मेरा क्वेश्चन आपसे सामने ये होगा कि उस फॉलोअर्स को कभी आपने यूज किया? अगर आपने यूज नहीं किया तो बिलीव मी, तो फिर तो वो मेरे लिए यूजलेस है। तो दिस इज द टाइम टू यूटिलाइज ऑल दोज फॉलोअर्स एज वेल, एंड सर्टेनली इसका पे एक इम्पैक्ट आता है, और इस सोशल मीडिया के अंदर तो रिपल इम्पैक्ट आता है। Absolutely. That's the beauty. So are there any like specific examples that you would like to share of your successful any successful story of of a student or any other person who has done affiliate marketing and has been very successful? I think हमारी ऑडियंस को देखना सुनना पसंद भी करेगी कि उसने किस तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट की, क्या किया, and if you could take that along if there's anything. बिल्कुल, देखें मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अमेज़ॉन की तरफ ऑलरेडी उनका इंक्लिनेशन होता है, क्योंकि वो अमेज़ॉन पढ़ते भी हैं, तो वो अमेज़ॉन सेलर अकाउंट की तरफ भी जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अमेज़ॉन एफिलिएट की तरफ जाते हैं, ठीक है? अमेज़ॉन सेलर कभी हम मेरे ख्याल में सेपरेट एपिसोड में डिस्कस करेंगे, बट आज अगर हम अमेज़ॉन एफिलिएट की बात करूँ तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर इसमें तो मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। सर द ब्यूटी ऑफ दिस इज़ कि मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, मैं iPhone 16 जो है वो सेल कर रहा हूँ, राइट? एंड वो मेरी वेबसाइट के थ्रू सेल हो रहा है, यानी मेरी वेबसाइट पे उसका लिंक मौजूद है जिसके ऊपर क्लिक होकर सेल हो रहा है, एंड आई एम गेटिंग पेड फॉर दैट एज वेल। मेरे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, तो दैट्स फंटास्टिक। सो द पॉइंट आई वुड लाइक टू से कि अगर आप कहते हो सर जीरो इन्वेस्टमेंट से अगर मुझे कुछ स्टार्ट करना है और मेरे पास ये स्किल सेट्स हैं, आई एम अ वेरी गुड कंटेंट राइटर, और मुझे तो लगता है चैट जीपीटी के आने के बाद तो है हर इंसान ही अच्छा कंटेंट राइटर बन गया है। सो द पॉइंट इज के अगर आप, ऑफ कोर्स हमारी डिस्कशन थी अबाउट एआई टूल्स, आई थिंक उससे एफिशिएंसी इंक्रीज करके आप इफ यू यूजिंग योर ब्रेन स्मार्टली, आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वी विल बी एबल टू सक्सीड।
true. Nice. So, about affiliate marketing, we discussed what it is. So, what do you think is the future of Pakistan in terms of affiliate marketing? Do you see the trend of people coming in, or do you see like any other upcoming trends in that? देखिए इसमें क्या है, पाकिस्तानी यूथ जो है ना, मैं अक्सर कहता हूँ बड़ा स्मार्ट यूथ है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको फिगर दिया 400 to 500 million dollars, ये कोई छोटा फिगर तो नहीं है ना, दैट्स अ वेरी बिग नंबर, राइट। और ये बड़ा इंकरेजिंग नंबर है। तो ये जो अगर आप नोटिस करें तो ये सारे के सारे लोग जो हैं, मेजॉरिटी इसमें वो जो हैं फ्रीलांसर, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ कंटेंट राइटर्स हैं, कुछ एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हैं साथ साथ। तो इसमें कुछ ना कुछ पाई के अंदर पोर्शन जो है एफिलिएट मार्केटिंग का भी होगा, ठीक है। सो तो कुछ तो इतने अच्छे मैंने कहा ना आपको कि पाकिस्तानी जो है, बिकॉज क्या है, पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट में आता है तो उसकी अंग्रेज़ी जो है ना, इंग्लिश, वो काफ़ी बेहतर होती है। तो जो वो बेहतर अंग्रेज़ी के साथ वो कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। सो सर्टेनली वो फिर कहता है कि नहीं यार, मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या है। सो नेक्स्ट स्टेप है इसके, आई कैन बेसिकली राइट द रिव्यूज़ फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स एज वेल, ठीक है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली रिव्यूज़ राइट करते हैं फॉर दोज प्लेटफॉर्म्स एज वेल, ठीक है। सो द पॉइंट इज़ के वो यानी एक्सेप्टेंस रेशियो देखें वहाँ तक कितना ज़्यादा है स्टूडेंट्स का। सो जस्ट इमेजिन कि इसका मेरा ख्याल है एक पैसिव इनकम के लिहाज से तो दिस इज़ दी फंटास्टिक ऑप्शन एज वेल। एंड आई रियली वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर टू कि अभी तक जो हमने बात की थी, ऑर्गेनिक बात की थी, राइट। अगर हम इसको कहें कि आप पेड मार्केटिंग की भी कुछ हो सकती है इसके अंदर, तो सर्टेनली मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इंस्टाग्राम पे पेड एड्स भी लगाते हैं। अब इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। मैं कहता हूँ सर मुझे कन्वर्जन जो मिल रहा है वो अराउंड 200 रुपीज़ का मिल रहा है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पस, ठीक है। और उस प्रोडक्ट से मुझे 1000 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो क्या मैं इंस्टाग्राम की मार्केटिंग करूंगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर दें। एट द एंड ऑफ द डे 800 तो आपको खुद मिल रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। सो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं सर कन्वर्जन 150 100 फिर इसमें मिल रहा है एंड वी आर गेटिंग पेड फॉर दैट एज वेल। सो इट्स बेटर टू बेसिकली स्टार्ट दी पेड कैंपेन एज वेल। तो आई एम नॉट डिस्करेजिंग कि आप ऑर्गेनिक ना करें, बट आई एम सेइंग दैट द एक लेवल के आप आने के बाद आप कहते हैं नहीं, लेट्स बेसिकली एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर ऑप्शन एज वेल एंड वी रियली वुड लाइक टू इन्वेस्ट एज वेल। तो बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे करते हैं, बहुत सारे लोग टिकटॉक पे करते हैं, बहुत सारे लोग मेटा के ऊपर कर रहे होते हैं, कुछ गूगल PPC के ऊपर कर रहे होते हैं। ये सारी की सारी कैंपेन्स चलाने के ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी फिर आप कहते हो कि नहीं मैं इस लेवल पे आ गया हूँ, आई वांटेड टू इन्वेस्ट एज वेल। तो जो कल मैं एक सेल कर रहा था मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, आई वांटेड टू इंक्रीज फ्रॉम 1 to 2, 2 to 10, 10 to 20। तो दैट्स बेसिकली द वे फॉरवर्ड। राइट। आई थिंक अगर हमारे व्यूअर्स के 50% भी लोग एफिलिएट मार्केटिंग पे स्विच हो जाए ना, 50%, that's a lot। तो आई थिंक इट विल बी अ रेवोल्यूशन फॉर द पाकिस्तान्स फ्रीलांसर इकोनॉमी, राइट। देखिए मेरा ख्याल है कि जो हमने बात की ना कि ये जो हमारे पास अभी जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, उसका अगर सिर्फ और सिर्फ हम डबल करने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, तो इमेजिन करें कि ये सिर्फ इंडिविजुअल को फ़ायदा नहीं होगा, ये स्ट्रेट अवे आपकी GDP को बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और ये दिस इज़ पॉसिबल एज आई सेड दैट के 1,00,000 1.5 लाख फ्रीलांसर तो कुछ भी नहीं है इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, जिसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो यूथ है, ठीक है। और ये जैसे मैंने बताया कि ये तो छोटे छोटे से कोर्सेज करके भी आप अपनी जर्नी को इनिशिएट कर सकते हैं। या Nice. So thank you so much for such an informative episode on this, and I'm hoping that in our next episode we're going to discuss even something more interesting. Inshallah. So thank you so much for this episode. अगर आप लोग भी affiliate marketing start करना चाहते हैं, तो I would suggest that start smartly, not blindly, and you should definitely be focusing on affiliate marketing. And let's meet on another episode of Digital Pakistan. So until then, Allah Hafiz. Thank you so much.